This coming decade is gonna be tech. Hello everyone, you are watching Yuva Bolega, and the girl who is on your screen right now is Damini Vashist. I don't know you will appreciate me or not for saying it. You are touching upon a problem that has been a reason for our country lagging behind for years. महिला सशक्तिकरण के लिए खुद एक महिला अब मैदान में उतरी है. You need to be very honest to the chair while taking any decision. कोई आपसे नाराज हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, because company is giving you bread and butter. So don't treat company as an entity. It's a human. सक्सेस इतनी जल्दी आता भी नहीं है कि वो वार्निंग बन जाए. Hello everyone, you are watching Yuva Bolega, and the girl who is on your screen right now is Damini Vashist. Today I'm going to introduce you with our special guest who is a successful entrepreneur and a lady who have a vision to bring revolution in our country by helping women and the youth. Miss Preet Sandhu, welcome on our show. Thank you so much, Damini. I'm so happy that I'm sitting in front of you and talking about it. Thanks to you too. Preet, I don't know you will appreciate me or not for saying it. You are touching upon a problem that has been a reason for our country lagging behind for years. प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए और उनकी परिकल्पना को पूरा करने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए खुद एक महिला मैदान में उतरी है. तो coming to the point, how all this started, how AVPL journey started? So if I talk about AVPL journey, so it started like when I did my MBA. I just completed my MBA. उसके बाद I had a plans कि abroad जाएंगे, study करेंगे, कुछ अच्छा job लेंगे, सब चीज़ें. Then due to certain reasons, I could not get the study visa to the abroad, any foreign country. So I was applying for the New Zealand that time, but I could not get the visa. So I thought let's have some experience of working here. So I joined Deep. So Deep that time my husband right now and also co-founder of this AVPL. So that time he was having just a concept note on the paper. I met him. He said कि मुझे अभी सिर्फ एक ही रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसके लिए भी नोट बनेगा. I said चलो ठीक है, this is going to be very interesting. It's not going to be a corporate life और जिससे मुझे थोड़ा सा लगता था कि like I should be more prepared getting into the corporate life. So we started together. When we started together, there was always a concern on the capacity building, because capacity building नहीं होगा तो country में manpower नहीं ऐसा क्रिएट होगा, स्किल्ड होगा जो इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प कर पाएगा. सो वी वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वी स्टार्टेड विद प्लेसमेंट्स, वी स्टार्टेड विद इंडस्ट्री एकेडेमिया मीट्स, वी स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द इंस्टीट्यूट्स. Then with like a span of 1 year or maybe 2 years, we got to know that this is going to be very monotonous work if we are not going to get new kind of the technology into the system. Right. बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, प्लेसमेंट्स नौकरियां तो मिल ही रही थी, नहीं मिलती थी तो कोई कोर्स कर लेते थे, फिर उनके बाद उनको नौकरियां मिल जाती थी. Then we thought let's create something wherein we are creating a manpower for special skills like AI तो अब है, ड्रोन अब आया है. अदरवाइज वी स्टार्टेड विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो वेबसाइट बना लेते हैं, एप्स बना लेते हैं. सो दोज काइंड ऑफ द स्पेशल स्किल्स जिसके लिए एक कोर्स करना पड़ता है. लाइक इफ वी से कि हाँ बीटेक पढ़ते हुए बच्चा ड्रोन बनाना सीख जाएगा, नो, कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. सो दिस इज हाउ आवर जर्नी गॉट स्टार्टेड. वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द इंडस्ट्री, विद द इंस्टीट्यूट्स, with the students, right? So slowly and gradually we get into the skilling manpower and building the capacity, creating the infrastructure and everything. We were happy with the journey.
because we were working on the skill, that's why we had great hands-on experience with rural and semi-urban area. Right. जब हम वहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए जाते थे, सेंटर ओपन करते थे, तो वहाँ पे मोबिलाइजेशन के दौरान, काउंसलिंग के दौरान वी गेट चांस टू मीट विद द विमेन. कुछ घर पे प्रॉब्लम है, या सिंगल है, या डिवोर्स्ड है, या मतलब अभी लाइवलीहुड चाहिए. सो दोज आर द टच पॉइंट्स जहाँ से ये लगता है कि लाइक कुछ और होना वो इस कंट्री में. विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट, शी शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. लॉट ऑफ द क्राइम्स विल बी स्टॉप्ड. आई मीन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? द बेस ऑफ एवरीथिंग इज द मनी, because everybody is trying to get money to have livelihood, right? To have good life, or not good, just mediocre life के लिए भी तो पैसे ही चाहिए ना. So we thought let's focus on some program which is related to the empowerment of the women. फिर उसके बाद डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम्स आए, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स आए, लेकिन उनसे ना अवेयरनेस होती है, उनसे कोई स्किल नहीं आ रहा है जो लाइवलीहुड क्रिएट. स्किल इज लाइक आप हाथ से ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसको करने के बाद आप पैसे मांग सको. राइट. अब सिलाई कढ़ाई कितना ही कोई कर लेगा, कितना ही. आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया है कि वो कपड़े कोई किसी से सिलवा के नहीं पहनना. 80% पीपल, मतलब गाँव में भी लोग खरीद ही रहे हैं. अमेजोन है, इतने सारे पोर्टल्स हैं. तो बेसिकली ऐसा कौन सा स्किल है जो विमेन कोई काम करें और उसके बाद उनको वो पैसा मिल सके. तो we were working with the agriculture community, and then we got the orders की instructions कि कुछ ड्रोन में करो. Then we get into drone like okay fine, this can be a tool for a women कि वो एक ड्रोन चला रही है, एक टेक्नोलॉजी है, गांव में रह सकती हैं, एग्रीकल्चर के आसपास हैं, उनके अपने खेत हैं, लोगों के खेत हैं. They can give drone as a service, and it is very safe for the women. They do not need to step out of their villages for this particular task. And also इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए. Right. आप 10th standard and 12th standard है, you can be a drone pilot, you can buy a drone, and in fact drone भी गवर्नमेंट दे रही है, इतना सब्सिडी मिल रहा है. तो why not to empower the women towards this thing? Because एक ड्रोन 1 एकड़ भी स्प्रे करते हो, 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ you are earning. आप दिन में 10 एकड़ भी स्प्रे करते हो, 5 एकड़ भी स्प्रे करते हो, you are earning enough for yourself. Then why not this as a tool, this drone as a service? Why not we should train women in that, and then empower them, and then give them a tool for their good livelihood. Right. So that's how अभी ड्रोन है, इसको हम थोड़ा इंटीग्रेट करना चाहते हैं रोबोटिक्स के साथ. फिर एग्रीकल्चर में और ज़्यादा रेवोल्यूशन आएगा. तो इट इज़ नॉट जस्ट दैट ड्रोन, आई एम सेइंग व्हाटएवर इज रिलेटेड टू रेवोल्यूशनाइजिंग द एग्रीकल्चर, we can add on those skills, and we should train women, more and more women in that, so that they can give those services to the farmers, maybe to the industry like ITC, Reliance Fresh, and they can have their livelihood. So if I talk about myself, why I'm more concerned towards women empowerment, I feel that women should be financially independent to have good life, to nurture the next generation. So you found the vision and you got to know about the reason about the women. But what challenges do you face in this industry, and especially when I talk about women, उन तक वो चीज़ें, अवेयरनेस या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी सामने? अभी इफ़ आई टॉक अबाउट ड्रोन, सो इसका अवेयरनेस जो है PMO से हो रहा है, राइट. सो कहीं ना कहीं सबको ड्रोन के बारे में पता है, ड्रोन दीदी के इनिशिएटिव के बारे में पता है, लेकिन उनको एक राइट वे से समझाना कि these are the steps to follow. आपको एक RPTO में जाना है, उसमें ट्रेनिंग लेना है, फिर उसके बाद ड्रोन खरीदना है, फिर उसके बाद
ऐसे लीड जनरेट करना है और ड्रोन एज अ सर्विस देना है और ऐसे चार्ज करना है, वो डेफिनेटली इट्स अ अवेयरनेस, इट्स अ प्रोग्राम जो पहले कुछ केस स्टडीज होंगे, एग्जाम्पल सेट होंगी एंड हो भी रही हैं और विद द स्पैन ऑफ टाइम पीपल विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. अभी ऐसा चैलेंजेस अबाउट कि विमेन इज डूइंग ड्रोन पायलट कोर्स एंड बाइंग अ ड्रोन एंड गिविंग ड्रोन एज अ सर्विस, उसमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हो रहे हैं. चैलेंज तब आ रहे हैं जब विमेन को ड्रोन भी मिल रहा है और उसको जब ड्रोन एज अ सर्विस करने के लिए जाना है तो इधर देयर इज अ, इफ आई टॉक अबाउट द रियल केस स्टडी in Assam, there is a logistics problem. ड्रोन अगर ख़राब हो जाएगा तो उसको ठीक कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर्स कम है, ड्रोन टेक्नीशियंस जल्दी नहीं मिलते हैं. तो जो पहले वाला काम है, प्री सेल वाला काम है, वो तो इनिशिएटिव इतना ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं लोग कि लोगों को पता है. पोस्ट सेल सर्विस को हैंडल करना और विमेन को हमेशा इनकरेज करे रखना कि यू गिव ड्रोन एज अ सर्विस, दैट्स अ चैलेंजिंग. उसके लिए डिपार्टमेंट्स का भी रोल है, उनका भी सपोर्ट लगेगा, केवीकेस का भी सपोर्ट लगेगा, उसके लिए एज इंडस्ट्री भी बहुत सपोर्ट लगेगा. तो मुझे लगता है कि प्री सेल कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन पोस्ट सेल देयर आर चैलेंजेस व्हिच वी एज इंडस्ट्री नीड time to sort it out. Have you taken any special initiative or AVPL taken any special initiative to support and empower women? Because सभी तक ये चीज़ें पहुँचना या फिर इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस होना ये इजी नहीं है. तो खुद से कोई स्पेशल इनिशिएटिव लिया आपने? हम सबसे ज़्यादा जो स्पेशल इनिशिएटिव मैं ये मान के चलती हूँ कि इस तरीके से हम लेते हैं. जैसे रिसेंटली आई विल नॉट नेम द सिंगर, बट लोग बहुत सुनते हैं उनको, एक रीजनल लेवल पे उनका अप्रोच है. वी आस्क्ड हिम that you talk about drone so that whosoever is listening to you ना, they should know what drone is. उनके माइंड में कुछ जाना चाहिए ड्रोन के लिए. So if you talk about it, तो हमारे एक इसी तरीके के इनिशिएटिव्स रहते हैं. या तो कोई आप इवेंट कर दो इस तरीके का जिसमें इनॉग्रेशन हो रहा है, तो लोकल मिनिस्टर और मे बी द पीपल जिसको लोग फॉलो करते हैं. बेसिकली हमारा ऑलवेज इनिशिएटिव इसी तरीके से रहता है, लेट्स कॉल द पीपल हु दे वांट टू लिसन. तो लेट्स कन्वे द मैसेज फ्रॉम देम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट. सो इसी तरीके के इनिशिएटिव्स रहते हैं. इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सोनीपत, सिरसा और गुड़गांव में ट्रेनिंग करवा रहे हैं. उसके लिए मोबिलाइजेशन हुई थी. तो मोबिलाइजेशन में पैम्फलेट्स इस तरीके से बटे हैं, उस पर इस तरीके का कंटेंट लिखा गया है सो दैट वो जब पढ़े उस पैम्फलेट को तो उनको समझ में आए. हमने वी ऑलवेज बिलीव इन फीट ऑन स्ट्रीट. सो वेर एवर द सेंटर्स आर, वेर एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर is, we have mobilizers more in number in comparison to the people who are handling the center. So feet on street आज की डेट में आप कितना भी डिजिटल कर लो, बट फीट ऑन स्ट्रीट जब तक नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे, आपके बारे में नहीं समझेंगे. तो आवर फीट ऑन स्ट्रीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज अवर USP. तो AVPL क्या स्पेशल ट्रेनिंग ऑफर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं आप मतलब विमेन के लिए या यूथ के लिए, हाउ टू हैंडल दिस ड्रोन और हाउ टू एजुकेट योरसेल्फ इन दिस इंडस्ट्री? Yes, we are doing the courses. We are doing one Kisan drone operator which is of like 45 days training program, जिसमें हम एग्रीकल्चर ड्रोन पे भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग ड्रोन पे भी ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं सो दैट कि वो बाद में जब अपना जॉब पे जाएं और ड्रोन को ऑपरेट करें, उनसे पहले उस ड्रोन के ऊपर उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक्चुअली देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड RPC प्रोग्राम जो 5 to 7 days का है. So from the day one we were very much clear. 5 दिन में ट्रेनिंग करके 2 किलो के ड्रोन के ऊपर ट्रेनिंग करके कोई 25 किलो का ड्रोन तो नहीं उड़ा पाएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन एनी विच वे. सो वी ऑप्टेड फॉर 45 days ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज एज पर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. Is this the USP of AVPL too? Yes. Okay. Yes. So KDO किसान ड्रोन ऑपरेटर इज द प्रोग्राम. उसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें उसी ड्रोन के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है जिसको उन्होंने खरीद करके ड्रोन एज सर्विस फार्मर्स को देना है. सो फ्रॉम डे वन वी वर वेरी मच क्लियर द ट्रेनिंग शुड बी ऑफ मोर ड्यूरेशन इन कंपैरिजन टू वॉट एवर इज गोइंग ऑन. सो वी आर डूइंग किसान ड्रोन ऑपरेटर, वी आर डूइंग ड्रोन सर्विस टेक्नीशियंस ऑल्सो, बिकॉज ड्रोन बेच तो लोगे, ड्रोन बना तो लोगे, उसको ठीक कौन करेगा बाद में. सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्सेज ऑल्सो विच वी आर ऑफरिंग थ्रू. दीज आर 4
institutes in Haryana and also in other states as well through our other centers. So we are totally focused on drone, but not just the operators, but also the manufacturing assembly engineers and then service technicians. So that's how we are working towards the drone industry. How do you think the government and the private sectors can collaborate with each other to make drone more accessible and affordable for the women? Okay, not just for the women, for everybody who is going to use the drone. So मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले कर दिया है. गवर्नमेंट ने जितना उसको पुश करना था, जितना इंसेंटिव they have incentivized the industry by giving PLI, राइट. तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को भी इंसेंटिवाइज कर दिया. उन्होंने नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के थ्रू ट्रेनिंग्स भी खुद से करवानी शुरू कर दी, राइट. उन्होंने ड्रोन्स भी दे दिए. तो जितना एक गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है टू एनकरेज एनी इंडस्ट्रियलिस्ट टू मूव फॉरवर्ड इन द इंडस्ट्री, दे हैव डन देयर जॉब वेरी वेल. दे हैव प्लेड देयर रोल प्ले, राइट. नाउ इट्स ऑन इंडस्ट्री. मैं आज भी ये चीज़ बोलती हूँ कि नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव इज नॉट गोइंग टू बी माई ब्रेड एंड बटर as a company. No, I have to put more efforts to make my business model more sustainable. It's just a what you call it in physics, it's just an inertia for first few years, but it's not going to be your business model. You need to create your own business model, sustainable business models to stay into the industry. Industry has lot of vacuum, lot of bits and pieces are spread across the industry. So there is no need to collaborate with private sectors? It's actually required. Exactly. We should not behave like competitor to each other. Yeah. We should collaborate with each other as a bring industry. revolution in our country. Yes. Yeah. So collaboration is one of the key. I mean, if I am sitting in north, somebody is sitting in south. So we can collaborate and we can revolutionize the industry. It's not just that कि ये तो इतने ही industries of big money. I mean, एक भी आप problem statement को उठा के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे ना, तो भी बहुत बड़ा कंपनी बन सकता है और काम किया जा सकता है. So coming to your question, yes, government has played a very big role. They have supported very well, but government के initiatives are not going to be our bread and butter. We need to more focus as industry, need to create more affordable business models, sustainable business models to be into the industry. Adding to it, I would like to ask, a few days back I was in IFCO and CRIBCO. They said कि बहुत सारी कंपनीज DGCA सर्टिफाइड नहीं है, बहुत सारी कंपनीज का अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया, हमारे पास काफ़ी हम लैक कर रहे हैं ड्रोन्स के लिए. सो व्हाट्स योर पॉइंट? इज इट ट्रू और आर यू वर्किंग ऑन इट? Yeah, there are two things which are in the question. One, of course, DGCA compliance and the certification. It takes time and it's little lengthy process. Of course, the people are also working towards it, considering the problem statement of the industry. It's little lengthy. That's why maybe drone manufacturers are not able to comply with the DGCA. When it comes to the manufacturers, नहीं है. Manufacturers इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैन पावर ही नहीं है ना इंडस्ट्री में जो ड्रोन को बनाएगी. हमें उनको बुला करके ट्रेन करके फिर बताना पड़ता है ड्रोन ऐसे बनता है, राइट. तो वो मैन पावर भी तो नहीं है. सो दैट इज वाई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, we are always focused on capacity building. जब तक capacity building नहीं होगा कोई industry thrive नहीं कर पाएगी. So we are more and more focused on it, capacity building, collaboration. There should be infrastructure to train the people, and then post sale service we need to focus on. So as an entrepreneur, are you getting any help or any advice from the LFCs like CRIBCO, IFCO and NFL? Because if we are serious for it, if we are really working for it, then they should एक इवेंट उनको करना चाहिए आप लोगों से बात करने के लिए, या कोई कॉन्फ्रेंस उनको रखनी चाहिए. तो क्या ऐसा कुछ उनकी तरफ से इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए आता है? मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन LFCs के साथ नहीं हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ये इंटरेक्शन होने में कुछ टाइम लगेगा बिकॉज ये इंडस्ट्री खुद में इतनी मैच्योर और एडवांस लेवल पे है ही नहीं कि इसके स्टेक होल्डर्स भी कुछ उस लेवल का सोच पाए. इफ़ आई टॉक अबाउट एजुकेशन इंडस्ट्री, इफ़ आई टॉक अबाउट स्किल इंडस्ट्री, सो दे आर वेरी मैच्योर इंडस्ट्री नाउ. दे नो कोलैबोरेशन कहाँ पे करना है, कॉल अप कहाँ पे करना है, कहाँ पे जा करके एक आई शुड नॉट टॉक लाइक दिस बट इट मे बी लिटिल ऑफेंडेड, बट
एक बंद कमरे में बैठ करके आप पॉलिसी नहीं बना सकते राइट, जब तक इंडस्ट्री का उसमें से नहीं, इंडस्ट्री मैदान में नहीं उतर सकते, exactly, एक बंदा इंडस्ट्री नहीं हो सकता। आपको 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको 40 लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। कई बार कुछ नोट्स आते हैं, नोटिस आते हैं, हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग होते हैं कि ये कब हुआ, अभी वो वाला समन्वय नहीं है okay. और इट विल टेक टाइम, और मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है उस चीज़ को ठीक करने में, बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक टू देम ऑल्सो, यू आर टॉकिंग टू अस ऑल्सो, सो हमें भी चैलेंजेस हैं, उनको भी चैलेंजेस हैं, बट वो ये ना एक राइट पाथ नहीं बन पा रहा है। इट मे टेक टाइम, बट आई मस्ट से पॉलिसीज बनाने के लिए it should be public actually, right. Publicly you call the people, you should take the advices, you should be, it's not just that two people are making the industry, right indeed वाकई में अगर समन्वय की स्थापना हो जाएगी तो इस प्रधानमंत्री की योजना के लिए हम और ज्यादा सफल परिणाम देख पाएंगे। Exactly. I'll tell you one thing. इन्वेस्ट इंडिया का मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या करते हैं, कुछ भी उन्होंने करना होता है, कोई पोर्टल भी लॉन्च करना है, कुछ भी करना है, दे आर कॉलिंग अप एवरीबडी, किसी इंक्यूबेटर को एज अ इंक्यूबेटर। सो वी हैव वन इंक्यूबेटर ऑल्सो। 2 लाख रुपए भी किसी स्टार्टअप को दिए ना, उनको भी इन्विटेशन जाता है, यू कम। भारत मंडपम में इतना बड़ा इवेंट करते हैं, फिर वो सब बताते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। तो आपके किसी के दैट इज वेरी डायनेमिक, द वे स्टार्टअप इंडिया वर्क्स, द वे इन्वेस्ट इंडिया वर्क्स, दे आर वेरी डायनेमिक इन नेचर। वो डायनेमिक, वो फ्लेक्सिबिलिटी अभी ड्रोन में नहीं है, आना बहुत जरूरी है। तो नमो ड्रोन दीदी के ऊपर अगर मैं बात करूं, पिछले साल ये स्कीम आई थी, अब इस बार इसको दोबारा रिन्यू कराया गया है, तो क्या सक्सेस रहा पिछले साल, कितना आप लोगों तक पहुंच पाए, कितना आपकी कंपनी ने सक्सेस देखा, और अब एक नया विजन क्या या नई कोई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हो इस साल के लिए? So, if I talk about publicly, officially the scheme, it is launched this year. वो भी अभी I think एक डॉक्यूमेंट आना बाकी है जेम से। उससे पहले जो भी हुआ है that is a testing. They might be doing testing with some players. कुछ प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स नहीं थे। जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स पता चलेंगे वो इस साल के नंबर्स के ऊपर पता चलेंगे या नेक्स्ट ईयर के नंबर्स के ऊपर पता चलेंगे। I'm not asking about the exact figures, but last year किसी को फायदा हुआ जिसने, मतलब जो आप तक भी पहुंचा या आप तक भी कोई फीडबैक्स आए हो? या फीडबैक्स बहुत आए हैं। फायदा, दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, बट फीडबैक आया है। मैं असम में गई थी, असम में आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द डेलीगेट। दे सेड कि हमारे यहाँ पे 18 नमो ड्रोन दीदी बनी थी, उसमें से 2 ही लेडीज जो है उसको डिलीवर कर पा रही है ड्रोन एज अ सर्विस। बाकी की जो विमेन है उनके लिए लॉजिस्टिक इज द प्रॉब्लम। नाउ पोस्ट इट्स द सेम, पोस्ट सेल सर्विस वो हो गया, उसके बाद नोबडी इज देयर टू हैंड होल्ड देम कि वो उनको लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, नहीं करना है, या किसी और कंपनी को लेके आना है इन्फ्यूज करने के लिए जो अग्रीगेटर की तरह काम करे। सो दोज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग ऑन ग्राउंड एंड इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग दैट it's a problem. No, it's a problem. Problems are there. They will be, we need to address these problems in the right manner. That's all which is required right now. So you were talking about the strategies and initiatives. तो किस तरह के initiatives हैं जो डिजाइन किए जा सकते हैं to attract the attention of women and the youth and the government? मतलब इंडस्ट्रीज को कैसे डिजाइन करना चाहिए? So as an industry, we have always concern about budgets, cash flows, है ना, ये सब चीज़ें रहती हैं। And drone is not a small thing to happen. It needs a lot of capex, procurement रहता है ना। Now procurement के अपने एक challenges हैं, सब चीज़ें हैं। So when it comes to the address, so the collaboration should be open actually, which is not happening right now. It should be public actually. It is not happening right now. We as a serious player, we are doing a lot of things, but we are not really going to say कि हम नमो ड्रोन दीदी में इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, ये करेंगे। हमें भी पार्टिसिपेट करने से पहले वी वांट टू सी द रिजल्ट्स, व्हाट इज हैपनिंग, दूसरों के क्या चैलेंजेस थे, अकॉर्डिंगली वी वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज वी आर ऑफ कोर्स अ लिमिटेड कंपनी, वी डू नॉट वांट टू टेस्ट थिंग्स, वी डू नॉट वांट टू गिव द टेस्ट रिजल्ट्स, नॉट इन द पोजीशन टू टेस्ट, राइट। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि लाइक पब्लिकली चीजें होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए,
पब्लिकली कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को एड्रेस किया जाना चाहिए, थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा स्टेक होल्डर्स को, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मोड लेके आना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सो बिग इनिशिएटिव्स, I must say stakeholders should be little flexible in their working style. So that's required as of now. So let's talk about the technologies. Technologies, do you think are driving the change in agriculture sectors or in every sectors? Because there is a line said by Cabinet Minister Nirmala Sitharaman, this coming decade is gonna be TechEd. So what is your point on it? What is your POV? Okay, so yes, definitely we need to adapt technology. This is the time when we have to adapt the technology. We have no choice. Actually, it's not an option. We have no choice. No choice. We have to, right? But as an industry, my point of view is people should be there into the ecosystem who can design how to commercialize the technology. राइट, टेक्नोलॉजी तो एप्पल पिक करने के लिए भी आई हुई है, बट वो इतनी एक्सपेंसिव है कि एवरीबडी इज नॉट अफोर्डिंग इट, बट उसको अफोर्डेबल बनाना एक बिजनेस एक्यूमेन है, राइट. टेक्नोलॉजी का आना इज गुड साइन, बट हाउ यू आर गोइंग टू कमर्शियलाइज इट, दैट्स मोर रिक्वायर्ड इन द इकोसिस्टम. इंडीड, या ईवी आ गई, ईवी गाड़ी आ गई, बट देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू चार्ज इट. तो दैट मीन्स हम कमर्शियलाइज करते टाइम हमारे पास चैलेंजेस ज्यादा, एग्जीक्यूशन में अभी भी कमी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. बिकॉज कमर्शियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू थिंक अबाउट द कॉस्ट, यू नीड टू थिंक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, यू नीड टू थिंक हु इज गोइंग टू बी योर टारगेट ऑडियंस, व्हाट इज देयर परचेजिंग पावर, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना पड़ता है. तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा वो लोगों की जरूरत है जो ये जान पाए कि इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज कैसे करना है. So we are talking about the ground reality again, coming to the point of Namo Drone Didi. How women can get certified by Namo Drone Didi and how can it shape their future also? So अभी तक जो Namo Drone Didi में there is a role play of self help groups. Self help groups में women का क्या जो ट्रेडिशनल मॉडल है, 7-8 women इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, फिर उनका एक बैंक अकाउंट है, फिर देन दे आर ट्रेन्ड अंडर सम स्कीम्स और पॉलिसीज, फिर उसके बाद उनको कुछ पैसा मिलता है जिससे वो कुछ खरीदते हैं, जिससे वो काम करना शुरू करते हैं. वो चाहे पिकल बनाने का है, चाहे वो बेकरी का है, कुकीज़ बनाने का है, जैम बनाने का है, whatever, right? So it is drone. It is just that कि अब पिकल को रिप्लेस कर दिया है ड्रोन ने. Okay. It's the same model. So self-help groups are going to be addressed in this scheme. 1 or 2 women per self-help group, they will be nominated for the trainings. They will be trained. Then a drone will be given to them. जैसे डेयरी के लिए women को ट्रेन करते थे तो फिर कुछ पैसे देते थे ताकि वो डेयरी का बिजनेस शुरू कर पाए. तो सिमिलरली ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको कुछ पैसे, कुछ ड्रोन का फैसिलिटेट किया जाएगा. एंड देन दे आर गोइंग टू गिव ड्रोन एज अ सर्विस टू द नियर बाय फार्मर्स. बस इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा वो ये आएगा कि उनका ड्रोन लेकर के लॉजिस्टिक्स का चैलेंज कैसे सॉल्व होगा. प्लेन एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिली एरिया में ये प्रॉब्लम आएगी. और दूसरा, उनका लीड जनरेशन कौन करेगा. उनको डेयरी में काम करके दूध बेचना तो आता है, चीज बेचना तो आता है, उनको सूट सिलाई करके सूट बेचना आता है, पिकल बेचना आता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं. बट ड्रोन से ड्रोन एज अ सर्विस वो कैसे करेंगे जब तक कोई उनको लीड जनरेट करके नहीं देगा. तो माई ओनली वरी इज दैट हाउ एज अ इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट चैलेंज. इंडिया में अभी कितने फिलहाल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं? I think 120 which are as per the DGCA approvals. हमारे अपने पास मेरे ख्याल से 6-7 institutes हैं अभी right now, and but since we believe in collaboration, so we have tied up with the personal experience. कभी ग्राउंड पर गए, उन सभी औरतों से, महिलाओं से बात की, उनकी क्या प्रॉब्लम्स रही आपके सामने जो उन्होंने आपको बताया कि इस तरह के चैलेंजेस हैं जो अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो लैक कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ से या चाहे वो लैक कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो अभी तक जो चैलेंजेस सिर्फ वुमेन के जो निकल करके आ रहे हैं, जो हालांकि जो टेस्टिंग है, जो सैंपल साइज है जिसके ऊपर टेस्ट हुआ वो बहुत छोटा है सैंपल साइज, बट उसमें से भी अगर आप कहो कि बात हुई है तो सी द मेन चैलेंज इज
किसी को भी दुकान खोल के दे देने से दुकान नहीं चलती है, Right. दुकान चलानी पड़ती है, राइट। उनका चैलेंज ये है कि वो लीड कहाँ से आएगा, बिल्कुल, वो स्प्रे करने कहाँ जाएंगे, कौन बताएगा। ये अभी इनिशियल में चैलेंजेस आ रहे हैं उनको। तो सो वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव, देयर इज अग्रीगेटर प्लेटफॉर्म वी डू हैव, वी आर गोइंग टू लॉन्च इन कमिंग मंथ्स, सो वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट चैलेंज, वी आर गोइंग टू जनरेट लीड्स फॉर देम सो दैट दे कैन गिव सर्विस, ड्रोन एज अ सर्विस एज पर दोस लीड्स। सो एज एन एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा डिसीजन वो पिछले साल भुलाना नहीं चाहती मैं, यू नो वो आपके लिए 4 से 5 साल एज एन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली फॉर यू एंड फॉर योर टीम, holding true to your conviction and being perseverant and taking to the dark days and still believing and still make it happen. What does it take? It takes a lot of courage, right, and a lot of bravery and lot of self-confidence. I'm telling you, as a woman, you know, if a man has to take like 100% of the courage or you know, self-confidence, I must say it's 200% for the women. Because it's not just that they have to prove to themselves, no, they have to prove to the people surrounding them also कि yes, I can do this, please believe me. मुझे लगता है कि women का सबसे ज़्यादा एनर्जी एंड एफर्ट इसी चीज़ में जाता है, उनको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता है कि कर लेंगे, बट उनको आसपास के लोगों को भी उस कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ता है। मे बी जनरेशन कमिंग फ्रॉम अस, that time this ratio may be less, but right now for us it was huge. We had to I will not say that we had to, you know, make everybody feel comfortable around us, no, but at least don't disturb us. That kind of, you know, aura we had to create. At least you cannot support, please sit down, stay quiet, don't interfere. We will do whatever we want to do, but whatever we have seen as a vision, we have that potential and we will do it. ये करेज लेके आने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि विमेन की एज अ ब्रॉटअप जो पर्सनैलिटी यू नो बनाई गई है वो ये कि वी आर, शायद वी हैव टू प्लीज पीपल, राइट, प्लीज फैमिली मेम्बर्स, Totally agree. प्लीज आवर चिल्ड्रन। सो ये प्लीज वर्ड जिस दिन डिक्शनरी से बाहर हो जाएगा, people will talk about you, oh, she's so bold, she's so egoistic, she's so, इट्स ओके, फाइन, टेक दैट। वो आजकल बोल रहे हैं ना कि कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं कि आप मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, इट्स ओके, फाइन, आई एक्सेप्ट इट, आई डू नॉट वांट टू जस्टिफाई इट। So that kind of attitude, but at least I don't need your help. Yeah, I do. Okay, fine. If you're thinking about me, this thing, okay, fine. I'm very much happy. Please don't come to me. It's your problem. You have thought of. So you deal with it. So what is the mindset you cultivate? Because all the beginners want success very quickly. And last day only I was reading a book, so there was a line. If you get a success in your first try, then it's not a win. It's a warning. So be skeptical. Are you skeptical? If you had asked this question 5 years back, that time I was, but not now, because I am mature business now. Oh, nice. So I know what are my Good steps. to hear it. Yeah, I know my strategies. I know how to deal with the problems and the challenges. And at this stage, I'm happy to deal with the problems. If there is no problems as a company, if there is no problem on your workplace, then there is something fishy. So there should be problems, and you are here to solve the problems. So that's my point of view. But yes, success इतनी जल्दी आता भी नहीं है कि वो warning बन जाए. Nice line of the show. Okay, so for startups, for जो beginners हैं या entrepreneurs अब बनना चाहते हैं, कोई special tips मिस प्रीत सांधू की तरफ से, और women जो खुद को empowered करना चाहती है, या जो अब यूथ है जो एक रेवोल्यूशन की तरफ देख रहा है, उनकी तरफ से या उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज, स्पेशल अपील आप करना चाहोगे? Okay, so one, you need to be very honest to your job. It can be anything, but at least be honest to your chair. This is one thing I want to convey. Second,
whenever you are taking decisions sitting on your chair, your personal and professional, there should be a huge boundary line in that. So you need to be very, very, honest to the chair while taking any decision. कोई आपसे नाराज हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, because company is giving you bread and butter. So don't treat company as an entity. It's a human who is giving you bread and butter. You need to think only about the company. Okay, fine. We need to be human in person and everything. It's fine, but we cannot do injustice to the company. So आजकल काफी चल रहा है ये trend. There should be a work-life balance, there should be everything. Okay, fine, that's a good thought process, but I must say, if you want to be an entrepreneur, I'm telling you, work-life balance is not just I do not want to say it's a negative part, but please forget about work-life balance. Oh, yes. Is it? If you want to be an entrepreneur, if you want your idea to be successful, please forget about work-life balance. There is no work-life balance at all exist. At least I have not seen work-life balance, but similar must be the case with all the entrepreneurs, because work-life balance तब होता है जब चीज़ें बड़ी easily आपको मिली होती हैं, जब आपने ही सब कुछ बनाना है, आइडिया भी आपने बनाना है. एक myth है for the employees, not for the entrepreneurs. हाँ, मतलब अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको अपना विजन क्रैक करना है, एक माइलस्टोन अचीव करना है, तब वर्क लाइफ बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. आई एम टेलिंग यू, आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 से 55 हो चुकी है, राइट? द वे एनवायरनमेंट इज एंड एवरीथिंग, राइट? 55 तक अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो यू शुड वर्क हार्ड टिल यूर 45 एटलीस्ट, कि उसके बाद जो आप करो वो करो जो आपको माइंड से सेटिस्फाई करे, सोल से सेटिस्फाई करे. बट टिल 45 ईयर्स भी अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस का एक लॉलीपॉप लेके चलोगे ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Okay, so there is no work life balance concept in my life as an entrepreneur. बाकियों का मुझे पता नहीं, बट सीरियसली आप जब एंटरप्रेन्योर बनने के सपने देखते हैं, आपको आइडिया भी खुद बनाना है, कंपनी भी खुद बनानी है, लोगों को भी खुद लेके आना है, उनके सक्सेस फेलियर को भी खुद ही ऑनर करना है, तो आपके पास कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. यस, योर एम्प्लॉयज कैन एंजॉय द वर्क लाइफ बैलेंस. How did you learn it? Failures. From the failures. Failures are the best teachers. Yes. And for the women. For the women, जो चाहती हैं खुद को एम्पावर करना, बट कुछ चैलेंजेस हैं या फिर अवेयरनेस की कमी है, तो वहाँ अगर इंडस्ट्रीज भी लैक कर रही हैं या गवर्नमेंट भी लैक कर रही है, तो आई होप ये मैसेज आपका उन तक ज़रूर पहुँचे. Tier 2, Tier 3 हमारे जो सेक्टर्स हैं उन तक ज़रूर जाए. सी, विमेन के अंदर एक यूनिवर्सल जो एक ट्रूथ है, उसके अंदर ना बहुत करेज होता है. जिस दिन वो अपनी आई पे आती है तो वो कुछ भी कर देती है. ये विमेन के लिए बहुत फेमस है, इट इज ट्रू, एंड इट इज ट्रू. सो मुझे विमेन के लिए एक ही मैसेज देना है कि आप चाहे Tier 2 में हो, चाहे Tier 3 में हैं, आपके अंदर जिस दिन करेज आ जाएगा कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप उस दिन कर लोगे. इट्स जस्ट दैट करेज कहाँ से आएगा? करेज आपके अंदर, आप जब किसी चीज़ को डिटर्मिन कर लेते हो ना, तो आपके लिए वे आउट्स खुल जाते हैं. अगर अवेयरनेस की बात करो, यूट्यूब इज देयर. Tier 2, Tier 3 में विमेन आर इन्फ्लुएंसर्स इन अ लॉट मैनर. तो आपके पास बहुत तरीके आ जाते हैं जब आप डिटर्मिन्ड हो. इट्स जस्ट दैट नॉट जस्ट विमेन, नॉट मैन, इट्स जस्ट दैट डिटर्मिनेशन, और उस पर कायम रहना वो बहुत ज़रूरी है. और वो जब आता है तो तब आप सब कुछ कर लेते हो. लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एज ए विमेन you will have your critics all the time around you in your family. So keep this in your mind. Yes, and please carry that with like a feather on the crown. It's okay. सबको critics नहीं मिलते हैं. You are lucky if you're getting it. Yeah, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, that means आप कुछ हो. Right. तो it's okay. मतलब वो डरना नहीं है उस चीज़ से कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. आप अपने लिमिट्स में काम कर रहे हो, लोग कुछ टाइम के लिए बोलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे क्योंकि उनको कुछ और मिल जाएगा बोलने के लिए. तो माई मैसेज इज ओनली दैट कि आपका अवेयरनेस, और आप जिस दिन डिटर्मिन्ड हो जाओगे, उस दिन अपने आप यूनिवर्स आपके लिए वे आउट्स खोल देगा.
So it was Miss Preet Sandhu, everyone, a phenomenal lady and a businessman. Thank you for joining us today and sharing your insights and inspiring our youth. And wishing you all the luck for your future projects to keep yourself motivated and inspiring and updated. Keep watching Yuva Bolega.